KDN apex se draft proposal MHA kalkango tene public na chi question yotna chi doubt yotna pyo ngata discussion ipya maja tayaring derte dia juspin iuzashik na jeng ngal na choche pin inam ngata Mustafa kabe tene I draft ko choche sina kone chaklas ma mangpoza ten research mangpoza ten tene kong nang nyampo ngeja tukujo to ngata apex ngata wakil nisyo le chik Vikram jo no kong Karnataka ne jukste no yang Supreme Court wakil no yang constitutional expert no tene kong iska lokte I ngata draft proposal go choste no yang iwo tene Jagmar Chuya Joina Joskane ngata draft chik mano iwo lo yir ngata last of the evolve song kanji no kavena nga tene ngata daksenge ming juskan kong iske man pa yang ngata mi khaspa mangpe ang jagare satim sena kogune input ina mangpoyo kabe score la tene Mustafa Haji ngeja detail ina juchezin tene nge spera mangpo measure tene I draft proposal ko kazuwa evolve song iwo chang bas tiot kan strategic manok natang apex na KD demand sanga use nok nata statehood nang 6 schedule wo main demand go nok nata teo man pa nata demand karungis kavena nata domicile in pin kawo nata thap chap sarkan no teo man pa nata parliamentary seat nis lagla tong zarkan demand go no tegune ka discussion chogosya opposite metkak samara the main chalak ko ngata statehood demand nang tene 6 schedule demand go no tene tebo ngata distetans to kyak tene tebe na thebajik ngata sting ni chi diskyak zernale te ngata mi mangpoji ka case son te ngata tegune ka attempt to murder case tans te kyak kagun convict chana life imprisonment sukbang yot kyak te unma serious peraj gano tene iwo ngata political demand jik nemin jik tang te jane ngata waka sungkan jik 24 tarikh jaga 24 September jaga waka sungkan no tene te gunang ngata talks po thorel demo chache chana ngata chitong natija jika lebat na tene te changmang metkan cha gozerte tene I draft proposal bi jugma ka ngata distil to no kabena sonamang chugang ngata include no kona unconditional jail ne put gozers kambo tene nge Mustafa je yo kulin tene ngeram ne I draft proposal score la ngala introduction jiksa lazat tene ngata changma la justice scaps tamen tv pia ngata zamshik ngata tus chana ngata nemte suachi doubt yo tene tebo ngata din selches koshichwen teo song pasana nge tene Mustafa Hajia tene diri discussion nge handover choste khong lajin tene E school lajin ngira goma introduction diksa ga आप सभी को पहले तो जुले और गुड आफ्टरनून और सलाम और जितने भी मोअज़्ज़ज़ लोग यहाँ आए हैं आप सबको हमारी तरफ से शुक्रिया। हम ये समझते हैं, मैं इंडिविजुअली आज़ाद समझता हूँ कि जो भी लोग यहाँ आए हैं वो एक कंसर्न हम लद्दाखी एज ए कंसर्न लद्दाख के लिए रखते हैं। हम सब लद्दाख को लेकर फ़िक्रमंद हैं और जिस तरह के हालात अभी इस वक्त लद्दाख में है उसको लेकर भी हम बहुत चिंतित हैं। हर कोई भी शख्स मुझे लगता नहीं लद्दाख में ऐसा होगा जो अभी जो हालात जिस तरह से 24 के बाद है उसको लेकर चिंतित नहीं होगा, लद्दाख के फ्यूचर को लेकर चिंतित नहीं होगा। और हर अपने आप से हर कोई चाहेगा कि जितना हो सके वो एक अपने लेवल पर, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली अदरवाइज भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे। डाउट ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए लॉयर बट एज ए लद्दाखी मैं द्रास से आता हूँ जो आपको पता है लास्ट बॉर्डर है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। मैं जब पहली बार अपेक्स के साथ जुड़ा था 2021 में था, मैं तुतन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस वक्त भी काफ़ी लोगों से पूछ कर ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है
उनको यहाँ हमें लाने की ज़रूरत है, सो दैट हम कोई भी रिसर्च हमारी जो डिमांड होगी उसको हम गौर व फिक्र करके कॉन्स्टिट्यूशनली कोई लैकुना न रखकर, कोई शक और शोभा न रखकर हम उसमें रिसर्च करें। तो मैं एज ए रिसर्चर, एज ए लॉयर, तब से 2021 से 20 के एंडिंग से 2021 से ऑलमोस्ट 5 सालों से मैं जुड़ा हूँ एपेक्स के साथ। और कालिंग का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे वो मौका दिया और कहा कि जो मेरी लीगल जितनी भी एक्सपर्टीज़ है, जो मेरा बैकग्राउंड अगर आपको कहूँ तो मैं नेशनल लॉ स्कूल हैदराबाद से 2013 से पढ़ा हूँ, और आपके पुडुचेरी गई, नॉर्थ ईस्ट गई, बहुत सारे टीम हायल के थ्रू गई, इनने रिसर्च किया। मुझे याद भी है करगिल में तो कर्फ्यू था, बट हमें याद है कि यहाँ पे बहुत सारे ओपन डायलॉग्स एंड डिस्कशंस मुझे याद है ले में हुई थी, जो एज ए लद्दाखी, और तो मैं उसका पार्ट नहीं था, बट बड़ा मुझे ज़बरदस्त लगा, बड़ा कंस्ट्रक्टिव लगा। भले ही किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वो नॉलेज ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से एक आर्किटेक्चर होता है, जिस तरह से स्पेस होता है, जिस तरह से इंजीनियरिंग होता है, जिस तरह से MBBS होता है, वो भी एक टेक्निकल फील्ड है। तो जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे नहीं, उसका आप अच्छे से जानेंगे नहीं, तो आप कहने को तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उसकी बारीकियों को, टेक्निकलिटीज को आप समझ नहीं पाएंगे। तीसरे स्टेट शिरोनामा 30 MLA गोसे मतलब लेजिस्लेचर बिल्कुल तो पॉपुलेशन बेसिस कर गोसे जरूर पॉपुलेशन वो एज अ बुद्धिस्ट मिनोरिटी ना होता आज क्या नया इक्वल राइट थोबे ना जकान वो हो गया गजुक्षी अजुक्षी मैंने दक्षा चीन हो गया एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट दक्षा ई जनरेशन में चुको क्या लग गया मी क्या लग गया ना राइट लिपरन नंबर से यक्षी हार्डकोर मी जिगों से majority na yokan bo station nga politics bo religious based station there's an statehood demand bo ka miuni nga suno na majority na yokan based ni minority na yokan un dabai chacha odega kazukshi ga nga isko balance wen jekan bo like doubt awe so chezena ST the reserve change na nga ta yencheno tanga da as a population based thomna area wise the तामन डिलिमिटेशन फर्स्ट प्रेफरेंस पॉपुलेशन बेस्ड ताना पॉपुलेशन बेस्ड ताना चेक नई समझो हिसाबा बुद्धिला काम थोप जेरो चेक मेजॉरिटी का मा थोपना ई जनरेशन का कोई पॉलिटिकल लीडर होते मो युतना नेक्स्ट जनरेशन हार्डकोर पॉलिटिक्स चिगों से उसका पॉलिटिक्स से जे शिक्षो वो बैलेंस हो जे स्पो चेक ना डाउट्स ना वो देना चिकन शेयर सर सेकंड ये है कि किसमें हमारा मूवमेंट चला 3-4 साल से हमें चल रहा है सुबह किसके लिए चल रहा है हम सेफ गार्ड के लिए चल रहे हैं समझो सेफ गार्ड किसके लिए चाहिए था लैंड एंड रिसोर्सेज एंड जॉब के लिए चल रहा था तो उसमें ये था कि हमारा था कि हमें इसके लिए हमें मेन ये चीज़ था कि उसमें सुनस्कोप जो ना हमारा हाँ हम ये सुनस्कोप पे लड़ रहे थे इसको हम किस तरह करेंगे उसके लिए क्योंकि बाहर वाले आते हैं यहाँ बस जाएंगे हमें डर है ये है वो है उसका डोमिसाइल का कोई पता नहीं सेकेंडली जो इन्होंने अभी जब बताया पॉपुलेशन के बारे में मैं कहता हूँ जब भी मूवमेंट हमारा चला है उस वक्त क्या हुआ था मूवमेंट में ये क्लियर किया था जब स्टेटहुड की बात हुआ वहाँ तो स्टेटहुड की टाइम बात हुआ तो उन्होंने क्लियर कहा था कि स्टेटहुड जो ना एरिया के हिसाब से मिलेगा उस वक्त जब मूवमेंट में लोगों को ये बताया गया था पूरा बताया था एरिया के हिसाब अब चंगथंग वाले को 9 सीट मिलेगा 10 सीट मिलेगा MLA मिलेगा जस इस तरह बोला था तो हमें क्या था जब हम ड्राफ्ट देखा तो उसमें ये नहीं था उसमें क्या था इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से इस पे हमें वो चीज़ था फर्स्ट ये हो गया सेकेंडली हम ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं सर सेकेंडली जैसे ये ड्राफ्ट हो सर ये आप यही ड्राफ्ट आपने MHA को भेजा हुआ है क्लियर श्योर सेकेंडली इसमें क्या है सर हमने सिर्फ स्टेट का भी हम ये कर दिया इसमें एक डाउट ये वो है जैसे रिव्यू बहुत सारी चीज़ें हैं अभी हम वो बाद में बात करेंगे फिर 6 शेड्यूल की बात करें हम 6 शेड्यूल का ऑलरेडी 6 शेड्यूल का इसमें ऑलरेडी 6 शेड्यूल का एक आपने प्रपोजल दिया हुआ है ड्राफ्ट बना हुआ है इसमें 6 शेड्यूल में आपने अरेंजमेंट किया हुआ ये सब 6 शेड्यूल को जो हम डिमांड कर रहे हैं अभी जब हमारा एजुटेशन चला एजुटेशन में हमने ये डिमांड किया कि हमें 6 शेड्यूल ही चाहिए उसके आगे पीछे नहीं चाहिए हमें 6 शेड्यूल ही चाहिए इन टोटो चाहिए समझ लेकिन इसमें जब ड्राफ्ट में हमने देखा ड्राफ्ट में था 6 शेड्यूल ए व्हाट इज दिस समझो दिस इज क्वेश्चन समझो उसमें क्या कहते हैं 6 शेड्यूल ए में आपने क्या लिखा होता है 6 शेड्यूल आपने क्या लिखा होता है उसमें ये सब अरेंज करो जो ऑलरेडी हमारे हिल काउंसिल में है पंचायत डालो म्यूनिसिपैलिटी डालो उसके बाद जब फाइनेंस डालो उसके बाद जो है ना आपने जॉब डालो उसके बाद रिक्रूटमेंट डालो ये आपने बोला हुआ था समझो तो इसमें हमें कंफ्यूज समझो ये नहीं होना चाहिए था लोगों को जब अब स्टेट बनेगा मुस्लिम पॉपुलेशन जो हम कहते हैं 2 पॉपुलेशन लद्दाख में एक मुस्लिम पॉपुलेशन एक बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इनका ये कहना है कि जब स्टेट बनेगा पॉपुलेशन के हिसाब से अगर डिवाइड होगा तो इनका एक सिंपल कैलकुलेशन है कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में जाएगा मुस्लिम मेजॉरिटी में जाएगा
पहला भी इस तरह से देखिए, जो हमारे अभी 2 काउंसिल है कि नहीं है, 2 काउंसिल में 30 मेंबर करगिल में है, 30 मेंबर लद्दाख में। मुझे बताइए मेजोरिटी किसकी है? नंबर 5 रेशियो मेंबर मेजोरिटी। उसी पे आंसर बताइए। आपने लंबा क्वेश्चन पूछा। जब भी आप जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन आपने देखा होगा अभी 2021 के बाद जो ये जिक्र सदन, ये स्टेट भी है, 371 भी है, सेक्शन भी है, सेक्शन 371 क्यों नहीं रखा? सिर्फ 371 ए क्यों लगा, बी क्यों लगा, सी क्यों लगा? अमेंडमेंट करने के साथ आपका लगता है चला गया, तब ट्रम्प कभी भी आ सकता है, बात करने के लिए बुला सकता है आप लोगों को। ट्रम्प का पहला ताश को तो लोग ट्रम्प पर सच है, सो ट्रम्प क्यों लोग देना का तो ट्रम्प को लोग तक ऑलरेडी एमएजी में चला गया है। अब इस पे कभी भी बुलावा आ सकता है आप लोगों को। तस त्यों छचन पे काट एक्चुअली तो काट उसका होना चाहिए था यहाँ चेयरमैन, लेकिन हमें अफसोस है कि नहीं है। सिंपल मिसमा ना ऑलरेडी इंटेलिजेंस मिस हमा लोग को बहुत पेना सीनियर हमा बहुत साथ पेना मध्य मुश्किल चुत पेना ये ना मत। तो अब जो ड्राफ्ट पे ना, अब ड्राफ्ट पे जो बात करना है मुसवा साहब प्लीज सर, आपको ड्राफ्ट पे बात करना है, कहाँ से नहीं जाना है, कहाँ दूसरा नहीं जाना है। आंसर इसका जवाब किसको देना है? इनको देना है ना, इन्होंने देना है ना, इन्होंने बात करनी है ना, इन्होंने बात कर। आप लोग तो जाना नहीं, या कोर्ट केस में आप भी जाना है। फिर अलग चीज है भाई, देखो ये क्लियर है ना। तो कादसिनी को बोलने दीजिए, कादसिनी ड्राफ्ट के बारे में क्या है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है, इस चीज में कादसिनी सकता इनको पता होना चाहिए ये चीज़ है क्या है। समझो ये शायद तो किच्च मानो यहाँ से कोर्ट ने छाना को तो ठीक है, वकील की जरूरत है, और मीटिंग के लिए इमेजेस मीटिंग करना है तो वहाँ तो साहब लोग जाएगा ना। ये सवाल है मन युक्ता गिंचेस ये सवाल जल्दी जल्दबाजी ना नाता सुनका गिंचेस दुगा सुनो चीज ना कर स्टेट देखो ना नाता यूटी अथवा लोच की तीन नाता स्टेट शुरू चो स्टेट बोलना शुरू कर दिया। यूटी अभी टांग पे खड़ा नहीं हुआ, अभी हम अपनी टांग पे खड़ा नहीं हुआ, हम तो अपना स्टेट चलाएगा ना। हगो मेरा कजुक चे सुलचे मन ये ना मां मुश्किल दुख ये ना संभा साल कुछ ये समय यार, उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्या चिक पोंगोला चिक पोंगोला जखान बुक मानो पर डिस्कशन जो दी बोस गोशा ngerang ti dapo ka listing na board discuss so doang demosum maskolali daksa ngerang state duri khilap chi bhain jere ngerang mos nga sirif dena dotun sum borille state duri khilap men de dotun bongera pura chona diring sangma sang khakche chichi yuti na kami pisi du gyali inna election bo thare na thopos thore stigma election bo thare na thopos na thopos je na thopos zerkha to se मतलब इधर जोर भाले जब देखते ना ये जो और हमेशा बहुत खेले दिल्ली वाले बना कि दिल्ली मीडिया पाउंडर्स। हाँ जी इस बार आप लोग क्या उम्मीद लेके आए कि कल आप लोगों का एमएचए के साथ मीटिंग है, तो बहुत लंबा खींचेगा जी, 1-2 महीने में नहीं होने वाले, एक मीटिंग में नहीं होने वाले, 2 मीटिंग में नहीं होने वाले, 1-2 साल लगेगा। तो मन स्पेरा इंग्लिश क्यों तो ये क्या ठूस हमें मिला तब सारा तो कुछ नंगला तो कुछ जेल तो कुछ सो मत खाली क्यों तो सब जलता इंग्लिश मोलचा तो क्या ना तेरे अलग सिसारो जले वो क्या दो नोटिस जो तो बार नोटिस जो तो मामूल चिप यहाँ हमारा एमएचएस गोष्ठ का लेफ्ट ना मना थोड़ा सी उम्मीद जो नंबर ना हम तो बहुत उम्मीद लेके आए कल परसों में डिसीजन होना चाहिए या हम 10-12 दिन हफ्ता रुकना पड़े, हम रुक के लेके जाएंगे मोलखान तो से ना तो प्रेशर सालों से ना ले तेरे निस्बत का यूज़ ले हाँ निस्बत का तो ये से ड्रॉप ना दो डिसे तो कि ना स्टेट मुश्किल वाला टैक्स कलेक्ट जो जाना पर्सनल लैंड ना रलुक बालांस यादी समय का ना क्यों मतलब जबकि डिलिमिटेशन जो था ना ह्यूमन पॉपुलेशन भी जो तो टैक्स कलेक्ट जो था ना एनिमल पॉपुलेशन का जो मतलब ना तो समझ जो तो लोग मी पॉपुलेशन तो घर में आयो रलुक पॉपुलेशन तो माँ घर यो देखा ना ना या फिर थोप गया तभी सुखसेगा सुम्पा में गए थे मैंने सुम्पा में तो जिपा में तो मतलब एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल संघ में रहना है और जो डिस्ट्रिक्ट पे नाना टैक्स कलेक्ट कर मतलब खाले लेकिन मैंने जमा चौथा ना मैंने हमारा ड्राफ्ट है ना 6 शेड्यूल के अलावा ए जरा 6 शेड्यूल ही अगर आप मेंशन कर ड्राफ्ट रहता ना याद है
ड्राफ्ट पे पेज नंबर रहता ना इन्हें पेज नंबर 20 वाली रहता ना इन्हें 20 वाला मान बने 18 का रहता ना आता है आर्टिकल 244 जिक्र चोस्तनो ये आता अमेंडमेंट चौकस देते हैं आर्टिकल 244 6 शेड्यूल फॉर अफेयर 6 ये आर्टिकल 244 सी लाता आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे तो मुझे अच्छा लगा मुझे आपको एक्सप्लेन ब्रीफली करने का मुझे लगता है ज़रूरी है कि आपने बड़े रीजनेबल क्वेश्चन पूछे आर्टिकल 244 में यूज होगा देंगे ना नमतक साहब ये आर्टिकल 244 बोलता है कि ताकि आता है ना क्लैरिटी हो ले 6 शेड्यूल ए जैसा आता है हमारा कन्फ्यूजन जो कर चलो लेकिन इन 6 शेड्यूल ही नहीं जाते लोग तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे ये 6 शेड्यूल ही है सकते हैं ना पहले आर्टिकल 244 वाले आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज ट्राइबल एरियाज इट सेज फर्स्ट द सब क्लॉज 1 says the provision of 5th schedule shall apply to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes in any state and 2 the provision of 6th schedule shall apply to the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram तो कहता है ना हो सकता है ड्राफ्ट में 6 शेड्यूल ही बोला ना जब भी आप कोई चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे ngata district soma shula chosta no pale tarun pura laglai na ma kyo anok ngata delimitation takriban somte no skadale ten हमने सिर्फ पॉपुलेशन बेसिस का तांस तो कहेंगे जा सवाल चप्पा एरिया वेटेज थोप तो हम थोप तो एरिया चिक्को अस्तामानो पॉपुलेशन चिक्को अस्तामानो एरिया में पॉपुलेशन इसका वेटेज तो रहा ये जो जिक्स आजाद ten हमने तेने बुद्धिस्ट मेजॉरिटी योत्कालना मा थोप तो का मुस्लिम मेजॉरिटी योत्कालना डिस्ट्रिक्ट मा थोप तो आप बताइए मुझे ना जवाब सब लेकिन एमएलए ना एमपी ने साउथ इंडिया ना नॉर्थ इंडिया चिया पोटे अजुक चुतो डिलिमिटेशन 2000 अजुक ना सुप्रीम कोर्ट या संसे दरुम सुबे डिलिमिटेशन मासो साउथ इंडिया एमपी सीट काम थोबा नॉर्थ इंडिया एमपी सीट मा को थोब पॉपुलेशन हिसाब का फर्स्ट प्रायोरिटी पॉपुलेशन लतानो देर थिंग पॉपुलेशन के हिसाब का संसे 2026 टू पे एक्सटेंड जो क्या मेन 2020 प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए था रिसोर्सेज का समझा उसका प्रोटेक्शन हमें चाहिए था उसका डोमिसाइल बना नहीं ये तो बना जॉब के लिए क्लियर लो उसको कोई तो है नहीं तो आपने ही बताया वो सही है इसमें हिंदू खचे फोटो खचे बराबर सुना सेकेंडली जब 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं 6 शेड्यूल का ऑलरेडी ड्राफ्ट है अब नया इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं था मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये ड्राफ्ट बना हुआ है हालांकि शायद यो सबमिशन संगल लजात पे नंगा ता फीडबैक को मा रिक्टोप शपिले तेने न्येमेया कुंजस डोलमा एलबी वाइस प्रेसिडेंट ले न्यापो एसपीसी मेंबर अंगले दांग ई ड्राफ्ट ना केडीएम ड्राफ्ट योत पे येजांग ट्रेन योत पे हलाले ते जाने ngaji केडीए मेंबर्स गुने ना डिस्कशन ऑन सोंगले फाइनल ड्राफ्ट को ट्रूप्स टेस्टिंग ने तेने ते ना पॉइंट टेक्निशिक ये पॉइंट आउट चोस्ते होतन कोला तेने तो रिव्यू चोस्ते ngada ना टाइम जते होतन लेकिन दांग ई ड्राफ्ट पे नांगा थमिरु ते नांगा पॉइंट चिचिक पो मेन बुदु पिले कि काउंसिल ले नांगा वुमेन रिजर्वेशन बो अनाउंस सोंग्स ते होतन ते नांगा तंग गोशुतन लेकिन ई नांगा तेना बोट तो पिन याले कि वुमेन बो योजना एज नॉमिनेटेड तो माने योंग मियोंग जरकान बोले सोंग पसंग रिक्वेस्ट चिचिक तो इन येजा यांग माने रिव्यू चोस्ते ई बो चेक्याले question yispa in case the statehood demands zatano halale statehood demands zatna as a citizen as a very citizen dangata dakse future dangata kazukshia revenue gun yongchen jazana daksa chaprenga da more than 6000 crores ingata central government ne yon yale tenangne almost 4000 chok 6 sirf salary chik bo chalo yale eu data ne zo yole so pasang ta teza chingati revenue generation bo 1000 crore chokshing mane mirukle shkadal so pa baki ngata revenue bo kazukshia thore state to bachi kazu ngata generate chochen bo question jikyale jazana nge je thuksam salte to te ka discussion zate to shkale tene yang chichik ngata constitution ne article 81b Mustafa Leshet ngira constitution norms to teve nanga te uzete do each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is so far as practical the same throughout the state le so posa iu ngaja hek mago na jinia le zek shik iu explain jizade na ki inanga mata constitution ji dubat na to
population ni basis is oshika z zate mano kazuk shigi nok zashkan bekayale yang question chichik doing 81b yang question chichik ngata to just to ngi na tax setas pero obviously state chik duk na ko tax chik tangs te mane chahe salary ka indo chahe ngata cheese gi na ta ngata income ka indo hotels ka indo guest houses indo te tangs te mane mana no inanga point chichik duk pilgrimage tax zashkan chigale te o chi ino karu tangche nok zashkan bo shik salpo zatche siale tene last peka ngajete na jin yango mane composition ekalep to yali mi mang pojite na zado ki this is not genuine composition mane total ngata hai ki dfx doms tangna buddhist composition wo mane nyun jituk zashkan bayale chikot pasa inna khachik pochek salpo chunati tukje मुझे पहला तो उन्होंने पूछा कि जो बताएं 33% जो रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सबके लिए। हमारा विमेन का पार्टिसिपेशन अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बट अदरवाइज भी रिप्रेजेंटेशन उनका हर जगह कम है। हम देख रहे थे कि जुडिशरी में 16% ही विमेन है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि हमारे इस वक्त तो वुमेन हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे एक जैसे हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो हमारे एपेक्स बोर्ड ने इनफैक्ट पिछली बार एपेक्स और केडी ने उनको मुबारकबाद भी दिया इस बात को लेकर कि आपने रिजर्वेशन दिया, तो उसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि इसमें ऑब्वियस सी बात है जब भी वो एप्लीकेबल होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है जो काउंसिल का नेक्स्ट अगर होता है, अगर इलेक्शन तो अभी नहीं किया, हाँ वो उसने ऑलरेडी बात किया है, तो उसमें जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली लगेगा क्योंकि उस पर लॉ पास किया गवर्नमेंट ने, तो उसमें कोई दोहरा ही नहीं। और रही बात सिमिलरली उन्होंने कहा कि जब कोई असेंबली होता है कल को, तो विमेन रिप्रेजेंटेशन तो मुझे लगता है हर बार जो अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया तो हमारे इख्तियार में तो ना चाहते हुए भी, हालांकि डिलिमिटेशन ने ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट ने जैसे कहा कि इम्प्लीमेंट करेंगे, ना चाहते हुए उसको सबको कोई ना चाहने वाला तो वैसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक मेजॉरिटेरियन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम रहते हैं, उसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। इट्स ए वंडरफुल क्वेश्चन, तो उसको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली असेंबली होगा, चलो 6 शेड्यूल होगा, हर जगह पे उसको करना चाहिए। रही 81 की बात करते हो, पब्लिक हाउस ऑफ पीपल की बात करता है, पार्लियामेंट की बात करता है, उसमें अलग से एक डिलिमिटेशन होता है। जैसे आपको पता है कि लोकसभा का डिलिमिटेशन होता है, तो उसकी बात करता है, तो ऐसे में उसमें शायद उसका थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है। बट टुमारो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज एन असेंबली इन लद्दाख, अगर कोई असेंबली आता है तो हाउ डू यू देन डू इट, देन देयर इज अ डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, देयर इज अ डिलिमिटेशन कमीशन। जैसे आपने देखा होगा अभी हमारे बहुत सारे लद्दाख में ALCs एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का भी डी नोटिफाई किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनको प्रॉपर्ली नोटिफाइड नहीं था, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, हमारे जस्टिस साहब आए, रिटायर्ड जज आए, उन पर ऑब्जेक्शंस लेते हैं। तो इस तरह से हर बारी जब भी डिलिमिटेशन होता है लोगों से पूछ कर, इस तरह से देख कर पॉपुलेशन का जैसे माझे केडीए जब हमारा वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था तो वकील भी थे, केडीए ने जो वकील रखा हुआ है वो भी थे, तो इन्ना क्वेश्चन वो ये कौन ला पुट अप चुस्पनियाल है समझता हूँ। उन्होंने बोला जो उन्होंने केरला का एग्जाम्पल दिया है। केरला में ऐसा हुआ था कि जगह खची का पॉपुलेशन मंगो योजना ते का कॉन्स्टिट्यूंसी मार गया पेन लोयल है, बट धीरे धीरे जब पॉपुलेशन कम हो गया तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को एक बना दिया। बोला Sompasang, is it purely not based on population? That is my question. No, it is not purely based on. I'll give a very recent example. When you look at Jammu and Kashmir post 2019, there was a delimitation for the assemblies in Jammu and Kashmir because it's a UT with assembly. Now, when they did delimitation, 7 seats were increased in Jammu, only 1 seat was increased in Kashmir, and 2 seats from Poonch Rajuri का जो सीट है उसमें लाया, तो वो गवर्नमेंट की मुझे लगता है जैसे स्पेशली अभी मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, कल को कोई और गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको बांधती है, बट पॉपुलेशन इटसेल्फ इज नॉट ए क्राइटेरिया। यही डिलिमिटेशन का इंडिया में डिबेट ही है, साउथ और नॉर्थ का जो अच्छा सर। ना तीसरा आ गया, आप कोई भी स्टेट ले लो इंडिया में, देयर इज नॉट ए इवन ए सक्सेसफुल स्टेट लाइक फॉर एग्जांपल गुजरात फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, देयर इज नो स्टेट इन दिस कंट्री व्हेन यू टॉक which does not work on aid, central aid. Now when you have a state, say for example in the northeast, all the northeastern states, in fact मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो उत्तराखंड से भी ज़्यादा, हिमाचल से भी ज़्यादा जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है लद्दाख में पूरे कंट्री में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी ज़्यादा है। वो लाख पर कैपिटा यानी 1% पे कितना गवर्नमेंट खर्चा करती है। अभी हमारा देखें तो 24,000 करोड़ से लेकर 45,000 करोड़ का लद्दाख का बजट है, यानी डिफेंस में जो आता है, BRO से आता है, स्पेशल पैकेजेस फॉर स्पेशली बॉर्डर रिमोट एरियाज पे आता है। तो इसलिए लद्दाख मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू का कोई मसला लद्दाख में होगा ही नहीं, क्योंकि अभी जितना भी है सारा यूटी होम मिनिस्ट्री के पास है। नहीं, जब स्टेट बनेगा तो रेवेन्यू तो हमें जनरेट एग्जैक्टली कैपेक्स बजट ही हमारा इनकम नहीं होता है। कितने सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, वो हमारा जो गवर्नमेंट होगा वो जितना DPR सबमिट करेंगे जितना फ़ायदा ले पाएंगे ले सकते हैं। दूसरा हम लोन
हर एक गवर्नमेंट लोन लेता है, कोई भी स्टेट नहीं जो लोन नहीं लेता है। वर्ल्ड बैंक है, अभी अभी हमारे पीएमजी पूरा वर्ल्ड बैंक का है। टॉप ये क्या बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। लद्दाख में कितने प्रोजेक्ट हैं जो कि यहाँ से कैपेक्स से नहीं बने हैं, मुझे पता है। और नबार्ड है, नबार्ड से सारा मेजर रोड नबार्ड से बना है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बजट प्लान से नहीं बना है। ये सारा हम ले सकते हैं। तेजना खिसना जम्मू एंड कश्मीर ना लद्दाख मिसका खिसना डोमिसाइल तंस लेकिन नाता लद्दाख पास खिसना एक्सेप्ट मचो एलआरसी एक्सेप्ट जोसी कि हमें प्रोटेक्शन यानी 6 शेड्यूल चाहिए जति ता दाउन सुपा नाता 2019 और 20 सुपा खिसना नाता अनएम्प्लॉयमेंट डाटा तना नया यूथ चिक्स पासवा अनएम्प्लॉयमेंट डाटा तसना खिसना जेनके ना ति चांग देजन डिफरेंस में 21 ना तंग से दाउन 25 सुपा नाती अनएम्प्लॉयमेंट डाटा खिसना 26 या 27 आलस घोने अनएम्प्लॉयमेंट डाटा खिसना तेजा मिरु त तेना नाता दक्सा खिसना दाउन जिंगा ता दाउन स्टिना खिसना नाता डोमिसाइल एक्सेप्ट जोस पा ता रिक्रूटमेंट सो ते टाइम में नाता मचोस क्या त तेना चोला खिसना गा जे कि 6 शेड्यूल लगा नाता दक्सा जु बजेट तिनो पासवा 6 शेड्यूल नि पॉइंट ऑफ व्यू नाही सपोज और सिचनो सरी हंग चांगमा चियाजना फिजिबल जिंग मिरुक जे फर्स्ट ऑफ ऑल खिसना नाता 6 शेड्यूल जेरेन दुक ना सो खोने दाउन 2025 लैंड पॉलिसी क्यों सो नाता दाउन सुपर लैंड प्रोटेक्शन दाउन जिंग दुक से पिन मगर खोने लैंड पॉलिसी क्यों लैंड पॉलिसी क्यों ना 30% चिक्स ऑफ शिकेजना आउटसाइडर आई नोट चोस मिरो का टू बी डाटा टू बी ऑनेस्ट ताय दरो माता नेक्स्ट मीटिंग के सना डिले चुना सो लैंड प्रोटेक्शन का माता दाउन सुपर जॉब रिजर्वेशन का तंस क्या जॉब रिजर्वेशन क्या त 6 शेड्यूल पर चीफ है फिजिबल मिरुक सो फर्स्ट ऑफ ऑल के सना 6 शेड्यूल माता अमेंडमेंट जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों सो जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अभी बीजेपी का सीट कितना है 272 सीट है, तो 2/3 मेजॉरिटी हुआ नहीं हुआ क्योंकि हम लॉजिकल नहीं थे 6 शेड्यूल मांगने के लिए। हमें 6 शेड्यूल की जगह अगर हमने लैंड प्रोटेक्शन या कि इसी काउंसलर को इम्पावर्ड करने के लिए बोलता तो शायद हो सकता था। दूसरी बात, अगर 6 शेड्यूल लाता तो 6 शेड्यूल क्यों चाहिए? लैंड प्रोटेक्शन छोड़ो, उन्होंने बोला कल्चर आइडेंटिटी या सब कुछ के लिए हमारे कल्चर कस्टम बुद्धिस्ट, इसमें जितना भी बुद्धिस्ट होगा सबको पता है 1950 के बाद हिंदू कोड बिल आया था 1950 का, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट। उस हिंदू में हिंदू के अंडर क्या क्या है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, 3 रिलीजन को उसमें मिक्स कर दिया। अभी तक जितना भी गवर्न हो रहा है इस लद्दाख में, जितना भी गवर्न हो उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट के या हिंदू कोड बिल के अंदर अगर 6 शेड्यूल आया बाय चांस, अगर हमें 6 शेड्यूल मिला, क्या वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा? रिट्रोस्पेक्टिव फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ मुस्लिम कम्युनिटी, उनको ट्रिपल तलाक के अंदर डाल दिया फॉर एग्जांपल, अगर 6 शेड्यूल आया तो रिट्रोस्पेक्टिवली मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो 6 शेड्यूल का हमें जरूरत क्या है? फॉर एग्जांपल फिर भी 6 शेड्यूल हमारे आइडेंटिटी को तो नहीं बचा पाया क्योंकि ऑलरेडी हमने हिंदू कोड बिल में दे दिया। ठीक सर, डोमिसाइल एक आके हमने हमारे यूथ ने जितने भी 5-6 साल वेस्ट कर लिया। ठीक, 6 शेड्यूल के मामले में अगर नेक्स्ट फिर भी अगर 6 शेड्यूल दे पाया तो ये सब रिजर्व कर पाएंगे। रूलिंग नो करंट रूलिंग में 272 सीट है। अभी हम बोल रहे हैं कि 2029 तक वेट करना आएगा। 2021 के 2011 के सेंसस के बेस पे लॉक हुआ है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी को यह पता होना चाहिए कि अगर हमारा आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो लैंड प्रोटेक्शन ही हमारे पास है ना, तो हम वाई नोट कि हम अभी नेक्स्ट मीटिंग में डायरेक्ट लैंड प्रोटेक्शन के लिए जाए कि 2000 योचे मारो पहले 272 में नहीं उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट ने सवाल कोलिशन गवर्नमेंट अपोजिशन ने मेरा अपोजिशन इना पार्लियामेंट आया लेकिन पार्लियामेंट वोटिंग शिक्षा ना सवाल आता जनके सपोर्ट तामिल सवाल 2019 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक क्यों 370 थोड़ा ही चुसना दिल्ली सातम बाकी पार्टियों ने अपोजिशन ने साथ माता स्थाना टिगिराले ते जाना चीफ या सोजना 303 होती होनाला मेजॉरिटी पावर माता दक्सा 272 में मेजॉरिटी पावर में रुपल ता माता यंग दक्सा टॉप्स को डिले पास माचो माता पता पास माचो स्वा इंट्रोड्यूस यू नाउ 2/3 मेजॉरिटी गोस्पा तेना राज्यसभा में तेना 2/3 डिमांड बोल को शेखो Salburnan la jain kira ngam putan zinjik. Ni gawanu pa sangma gawanu. Kane temporary LRC 1 year temporary LRC ngaya Mama domisal suita. Test dina ana central government proposal
Central government proposed shows baka. Proposed ngata choose pa Ladakh pa yapo ngata reject jo se LRC len 1 year temporary base pe. MHA na po apex body lanpo ngata strict tu kya dirin supa ngata domicile po ngata dang ngata te tane mane ngata table ka ma po ngena kazo se ngata purpose to kya se kan mama dunya disco ngata dang domicile nen chane ngata disco Proposal shows बहुत केस ना तो हमें ये देखा अगर फिर भी हमने अगर 6 शेड्यूल पे अड़े रहे तो हमने तो आइडेंटिटी के लिए इंडस्ट्रियल लैंड पॉलिसी है 2023 का था। आप देखिए अभी भी जाके होम मिनिस्ट्री ने एपेक्स और केडी ने पहली बार जब इंडस्ट्रियल जैसे भी आगे हमने उनने ओपन के लिए 1 महीने के लिए हमारे लोगों को ऑब्जेक्शंस के लिए दिया था। उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्शन हमने एपेक्स और केडी ने दिया था कि हमारे बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल बिल्कुल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था और बाकी बाहर से लोग उनके लिए आने की बात कर रहा था। तो मैं आपको ये वाजे करूँ कि क्लियर करूँ पहला ही, उसके बाद इमीडिएटली जो body and KG with LBA criticize it. not only criticism would not have helped it. Criticism does not stop anything from coming and getting implemented in Ladakh. But in the Home Ministry meeting, even during the presence of Kotwal Sahab, the Home Ministry said we are putting a stop on this. उसको 2 बार उन्होंने बाहर निकाला, एक बार चेंज करके निकाला, उसके बाद आपको याद देखो 24 में उसने ऑब्जेक्शन किया तो उसको हॉल्ट पे रखा। हमने बोला कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। होम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया, दिस एक्सेप्ट किया तो पास नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर अभी 2025 तक लद्दाख में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर प्रोटेस्ट। आता ज्यादा प्रोटेस्ट उसका ज्यादा से मीटिंग उसका ज्यादा से लोग हैं उसका। आपको याद होगा पिछली बार विंटर में कितने सारे लोग 20-30 लोग आ गए थे। तेना जैसे अनरिटन रूल है कि लद्दाख में लोग नहीं बेच सकते, तो रेवेन्यू वाले भी किसी बार को रजिस्ट्रेशन नहीं करते ईजिली, नहीं करते हैं, तो इसलिए वो प्रोटेक्ट किया है। दूसरी बात 6 शेड्यूल्स पर है। कल अगर 6 शेड्यूल होता बोलता है इट हैज टू बी 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ इट डज नॉट ओनली मीन द बीजेपी। नाउ हाँ वो स्टेज कब आएगा बिल पास करने का, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे बात करेगी, हमसे एग्री होगा। तो अगर हमारी होम मिनिस्ट्री में अगर जब बात चल रही है, होम मिनिस्ट्री अगर एग्रीज कि हमें 6 शेड्यूल देंगे, तो इसका मतलब एग्री कर रही है ना बीजेपी, हुकूमत एग्री कर रही है, तो उसने उनको बिल पास करने का क्या है। तो अपोजिशन ने तो ऑलरेडी बोला है, इतने सारे टीएमसी है, बाकी जो एनडीए की कोalition है तो वो तो सपोर्ट करेंगे इसको। बट हडल हमारा क्या है, हडल यही है कि क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिमांड है जो हमारे लद्दाख को ओवरऑल प्रोटेक्ट करेगी। इसमें होम मिनिस्ट्री अगर एग्री करती है, अमित शाह जी अगर हमारे होम मिनिस्टर एग्री करते हैं, तो इट विल गेट पास्ड इन द पार्लियामेंट। उसके एग्री करने पर उनके यही, इसलिए तो ये डिबेट चल रही है, इसीलिए तो उनके साथ मुज़ाकरात हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं कि हम बार बार यही उनसे रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि भाई आप इसको, हमारी जो डिमांड है लद्दाख की, हमारी आइडेंटिटी को, हमारे कल्चर को और जॉब्स को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि इसीलिए करके हमारे यूथ ने हमें इतना प्रेशर डाला बीच में, यूथ ने अनएम्प्लॉयमेंट बोला कि आपका 6 शेड्यूल आता रहेगा, स्टेट शेड्यूल आता रहेगा, लेकिन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, इसीलिए चलते रिक्रूटमेंट्स करवाए। उसमें एपेक्स बॉडी ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, केडी ने जोर लगा के बोला कि रिक्रूटमेंट हमें जल्दी करो। हम उनसे पीछे रह गए जम्मू कश्मीर से। उनने केस का दौरान अभी आप पढ़ रहे हो कि होप आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पे 4 बैच केस के निकल चुके हैं ऑलरेडी। हमारे यहाँ केस का एक भी बैच उसके बाद नहीं आया, तो फिर भी हमने स्पेशल एक प्रोविजन है यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट करा, जबकि यूटी विदाउट एन असेंबली में कोई पीएससी का प्रोविजन ही नहीं होता है। पीएससी के सिर्फ 2 प्रोविजन है। एक इज 19(3) सेक्शन 93 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। इट सेज दैट देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूटी ऑफ Jammu and Kashmir, and for Ladakh UPSC shall conduct the exam. 1 और आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि 2 स्टेट्स का एक जॉइंट पीएससी हो सकता है। उसमें यूटी विदाउट लेजिस्लेचर का कोई स्कोप ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। आपको ये भी पता है कि आपका डैनिक्स और डैनिप्स पे लोगों को डालते हैं, तो हमारे लोगों की यहाँ के रिजर्वेशन थी, अफसर्स की रिजर्वेशन की, हमें डैनिक्स में नहीं डाला, यूपीएससी में हमारे यहाँ पीएससी होगा। कल की जब तक हमारा कल का अगर असेंबली नहीं होगा तब तक पीएससी कहाँ से आएगा, मुझे बताइए। इसलिए 6 शेड्यूल की डिमांड के साथ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए बन गई। हमने रिसर्च किया, लोगों से पूछा, एक्सपर्ट से पूछा, जिनने लाया है स्टेट्स लाए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो बना है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स, हमने बोला कि अगर आपको असेंबली होना है, पीएससी अगर होगा, गेजेटेड पोस्ट तभी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं जब आपका पीएससी होगा। पीएससी कब होगा, जब आपका एक असेंबली होगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्टेट की डिमांड है।